Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 7. I am Muhammad Awais. The SLOs are as follows. First, we will revise the location of excess charge and various distribution of charges which have been discussed in the last video lecture. And in this lecture, we will study how to apply the Gauss's law to find the electric field intensity at any point near the infinite sheet of charge. And number 2, to find the electric field intensity at any point between the oppositely charged plates. Revision. No electric field exists within the metal or conductor. No excess charge exists within the metal or conductor. The excess charge accumulates on the surface of a conductor and charge density is more at the sharp edges. These are the points which have been discussed in the last video lecture. First application: electric field intensity due to an infinite sheet of charge. Consider an infinite sheet of charge with surface charge density sigma, and sigma is given as Q over A. Q means the total area on the charge, Q means the total charge, and capital A means the total surface area. It may be written as Q is equal to sigma A. Let P be the point at a distance r from the sheet and E be the electric field intensity at point P due to positive sheet of charge. चार्ज डेंसिटी को मज़ीद क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू डिफरेंट कन्फिगरेशंस में. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस शो की गई हैं. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर आप देखते हैं तो वो अलोंग द लाइन है, तो इसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं. और इसमें अगर आप देखते हैं तो सरफेस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, सो दिस इज surface charge distribution. In case of linear charge distribution, we may define a term linear charge density as charge divided by the total length, and in case of surface charge density, charge divided by the total surface area. Linear charge density आपके इस चैप्टर में यूज़ नहीं किया गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसे लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं और ये इक्वल होता है Q ओवर लेंथ, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये इक्वल है Q ओवर सरफेस एरिया. इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आपके सामने शो नहीं की जा सकती, लिहाजा हमने उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पोर्शन कंसिडर किया है, एंड द फाइनाइट पोर्शन ऑफ एन इनफाइनाइट शीट इज शोन. इसकी बोथ साइड्स पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. As we know, the first step for applying Gauss's law is to consider an imaginary Gaussian surface. In this case, we consider a Gaussian surface in the form of a cylinder as shown. The cylinder has two flat surfaces, this red and in this portion, and number third is a curved surface.
इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस आप कंसिडर कर सकते हैं, 2 फ्लैट सरफेसेस, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में और एक ये कर्व्ड सरफेस। और जो इस फ्लैट सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेट से A है। The direction of electric field is perpendicular to the face containing the P and P dash, because we know that the electric field lines from positive charges are always radially outward. सिंगल चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, तो जब आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस रखेंगे तो वो तमाम की तमाम लाइंस एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस से ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शंस में। एनिमेशन से ज़रा देखिए। The flux through the curved surface is 0. The flux through one flat face is EA and other flat face is also EA. So the total flux is of 3 types: phi 1, phi 2, phi 3. Phi 1 is basically across the curved surface. Phi 2 is along the one face and phi 3 is along the other flat face. Along the curved surface, flux is 0. This is EA, this is EA, and total flux becomes 2EA. Curved surface देखिए जैसे आपको येलो कलर में नज़र आ रही है, इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे आप देखते हैं तो जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह पे कंसिडर करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, जो वेक्टर एरिया वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो मैं बैक स्लाइड पे जाता हूँ। इसी वजह से हमने यहाँ पे जो कर्व सरफेस के लिए जब थीटा की वैल्यू आई, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल था, तो 90 की वैल्यू हमने पुट की। और जो दूसरे फेसेस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो फ्लैट फेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में है, सो थीटा बिकम 0 इस फ्लैट फेस में भी। और ये लास्ट इक्वेशन में आपने यूज किया। So total flux becomes this EA and becomes equal to 2EA. ये हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द डेफिनेशन। अब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे थर्ड स्टेप बाय यूजिंग द Gauss's law. According to Gauss's law, electric flux is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. लेट्स से जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपने कंसिडर किया है उसके जो चार्ज है, जैसे आप पहले बता चुके हैं, इसको आप इस शक्ल में लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। बेसिकली एक फ्लक्स की जो इक्वेशन आई थी 2EA इक्वेशन 1 और ये फ्लक्स की इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप कंपेयर करें तो फाइनल रिजल्ट आपके पास मैग्नीट्यूड में ये आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास ये आता है। अब आर कैप इज बेसिकली अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द शीट एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा जो कि शीट से अवे है, और नेगेटिव चार्ज के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शीट की तरफ होगा, यानी टुवर्ड्स द शीट।
उसमें आप माइनस आर कैप ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जब आपने बात की थी तो उसका फार्मूला जिसमें मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन को आप कंसिडर करें, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है वो आपके पास था E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो वहाँ पे आप देखते थे R बेसिकली पॉइंट का डिस्टेंस था फ्रॉम द चार्ज, और ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता था तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे डिक्रीज करती जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में आपके पास कोई R, कोई डिस्टेंस, कोई पोजीशन मौजूद नहीं है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्जेस जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी चार्जेस की, या सेकेंडली ये डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस शीट के इर्द गिर्द आपने मीडियम कौन सा रखा हुआ है। तो इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती कि वो आप पॉइंट जो है वो उस शीट के करीब ले रहे हैं या उससे दूर ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मैं इसको दोबारा जो बोल रहा हूँ वो काइंडली लिखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड near the infinite sheet is independent of the position of point P, and it depends upon the surface charge density and the medium between the plates. It depends upon the surface charge density and the medium around the sheet. Second application. Now we will apply Gauss's law to find the electric field intensity between two oppositely charged parallel plates. Consider two oppositely charged parallel metal plates. These plates are assumed to be of infinite length in order to avoid fringing field at the end. And under these conditions, the electric field will be uniform and normal to the plates. जैसे कि लास्ट एप्लीकेशन में भी आपने कहा था कि आपने एक इनफाइनाइट शीट का फाइनाइट पोर्शन कंसिडर किया, तो यहाँ भी आप उसी तरह से कह रहे हैं कि आपने इनफाइनाइट प्लेट्स का फाइनाइट पोर्शन कंसिडर किया है। तो क्यों कंसिडर किया फाइनाइट पोर्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कर्सर पे फोकस करें। नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स आर ऑफ लार्ज लेंथ, दीज मे बी कंसिडर्ड एज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हम इसका ये हाईलाइटेड एक फाइनाइट पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं। उस फाइनाइट पोर्शन को अगर इनलार्ज करके दिखाया गया है तो वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। चार्जेस इस किनारे से और इस किनारे से बहुत दूर हैं। दोनों प्लेट्स अपोजिटली चार्ज हैं। फिर जब आप इसको जूम करके शो करेंगे और प्लेट्स ये जो है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको कलर कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपने जब उनके प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 पैरेलल और इक्वली स्पेस थी, मींस कि देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस थी, पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। तो ये तमाम पॉइंट्स आप माइंड में रखें। अगर ये फाइनाइट पोर्शन में कंसिडर ना करता तो फिर क्या होता, आप देख सकते हैं कि ये एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म ना रहती। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जा रही है, कोई यहाँ पे जा रही है, कोई यहाँ पे जा रही है। इस तरह से नेगेटिव से अगर आप कंसिडर करते हैं तो इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये अलग बात है कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करते तो ये आप ऐसे लाइन कर्व सी बन जाती, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हुई ऐसे ही नेगेटिव पे टर्मिनेट होती,
ये पॉजिटिव से स्टार्ट होते हुए नेगेटिव पे टर्मिनेट होती, इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होते हुए नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, एंड सो ऑन। तो ये जो फील्ड है जो मैं आपको इन एजेस पे बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में ये कर्ल लाइंस के अक्रॉस, ये बेसिकली कहलाती है फ्रिंजिंग फील्ड। आप इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी कह सकते हैं। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो आपको यूनिफॉर्म फील्ड नज़र आती है, और अगर आप एजेस पे देखते हैं तो आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नज़र आती है, जिसे कि फ्रिंजिंग फील्ड कहा जाता है। तो हम इस फ्रिंजिंग फील्ड से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने पूरी शीट को कंसिडर ही नहीं किया, बल्कि हमने कहा कि हम पूरी शीट के फाइनाइट पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं। इस लिहाज से जो एजेस पे भी आपने जो फील्ड ली थी वो फ्रिंजिंग नहीं ली, बल्कि वो यूनिफॉर्म ली है, जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ आपने किसी किस्म की यहाँ पे कर्ल लाइन शो नहीं की, जो आपको बता रहा है कि आपने इनफाइनाइट शीट ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का फाइनाइट पोर्शन कंसिडर किया है। तो लास्ट एप्लीकेशन में मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं किया गया था, वहाँ पर भी आपने फाइनाइट पोर्शन इसी वजह से कंसिडर किया था। जी, गॉसियन लॉ का पहला स्टेप कि we have to imagine a Gaussian surface. In this case, we imagine a Gaussian surface in the form of a rectangular box. इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का अगर आप देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बेसिकली 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन चूंकि हम 2 डायमेंशनल फिगर को ड्रा करते हैं तो पहले आपके सामने ये शो किया गया, ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, फाइनाइट पोर्शन है उनका। फिर ये जो ग्रीन आपके पास डॉटेड लाइन में हमने शो किया, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स का एक फेस जाहिर कर रहा है। अगर आप देखें इस साइड से इस बॉक्स को देखते हैं तो आपकी जो फ्रंट साइड पे ये जो फेस नज़र आ रही है, इसकी ये वाली लाइन ये यहाँ इस प्लेट्स के अंदर मौजूद है, इनसाइड द प्लेट मौजूद है। इसकी ये वाली जो लाइन है ये इसको शो कर रही है, और ऑब्वियसली इसके पीछे पूरा फेस होगा। ये वाली लाइन इस लाइन को शो कर रही है, और ये वाली लाइन इस लाइन को शो कर रही है। तो 3 डायमेंशनली इस फिगर में शो नहीं किया गया, 2 डायमेंशनली, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इससे पीछे भी वो इसी तरह से हमने इसको प्लेस कर दिया, तो ये 3 डायमेंशनली होगा एक्चुअली। जब आप इस तरह से प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये जो बॉटम पे सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हैं। अलबत्ता ये इस साइड पे या इस साइड पे देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। इसी तरह से अगर ये टॉप सरफेस देखते हैं उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। टॉप का मतलब आप लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऊपर वाली है सरफेस, और अगर आप इसकी जो टॉप की बजाय अगर ये फ्रंट आप सरफेस कह दें, से फ्रंट सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, और इसकी जो बैक सरफेस है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। तो उस लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ये जो बॉटम सरफेस है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। इसकी ये वाली जो ऊपर टॉप पे सरफेस मौजूद है ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है प्लेट के अंदर, और आप लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्लेट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिहाजा इस तरह से हम कह सकते हैं कि let A be the cross-sectional area of the box, but as the box sides are parallel to the electric field with its one end and inside the metal plate, the rectangular box has 6 faces. 4 faces are parallel to the electric field and one is perpendicular to the field, and other is inside the metal where there is no electric field. So the total flux becomes 6 types of flux. तो ये तमाम जगहों पे फ्लक्स ज़ीरो हो गया और सिर्फ एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये कौन सी ये कौन सा फेस होगा? तो आंसर है जिसे आपने बिल्कुल बॉटम फेस कहा था। मैं इसको स्लाइड से आपको दोबारा शो करवा दूं। ये सरफेस, ठीक है, इसमें अब मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप इससे आप खुद वाकिफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेक्टर एरिया डाउनवर्ड है, दोनों पैरेलल बन गए। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल बन गए, एंगल 0, तो cos 0 1। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इस साइड पे अगर आप देखें वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एंगल 90, तो cos 90 ज़ीरो, यहाँ पे भी फ्लक्स ज़ीरो, बाकी साइड पे भी ज़ीरो, यहाँ बॉटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो लिहाजा फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल आता है। बाय गाउस लॉ भी हम देख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू दिस अगेन Q in terms of surface charge density can be written as sigma A, comparing both, तो E is equal to sigma over epsilon naught. This is the magnitude, and secondly in vector form we can write the above equation as that, where r cap, in this case r cap is a unit normal vector to the sheet and directed parallel to the electric field. Magnitude of electric field, conclusions. Magnitude of the electric field between the plates is independent of the distance of the point from the sheet. This is the same conclusion as we discussed in the last case. Whereas, remember, just not you have not to write this red lines. Just remember, electric field line due to point charge always decreases with increase in the distance of the point from the charge, whereas the magnitude of electric field between the plates is independent of the distance of point from the sheet. It means कि अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव से करीब है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई, ये नेगेटिव के करीब है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज़्यादा होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे बिटवीन द प्लेट्स अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा सेम होगी। और जो आपने इससे पहले चूँकि इक्वली पैरेलल स्पेस लाइंस जो आपने ड्रा की हैं वो भी बेसिकली सिंबॉलिकली इसी चीज़ को शो करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। And secondly, from the equation you can conclude that the flux depends upon the surface charge density and the medium around between the plates. In the end, Allah Hafiz.